Yeah, good morning, friends. My name is Chandrashekhar, and I'm an Hi, alcoholic. Chandrashekhar. Hi. Hi, everybody. I heard Kuldeep speak, so I just want to say of myself, I'm nothing. I'm sober today by the grace of God, whom I found in the 12 steps of Alcoholics Anonymous, and with all your help. I wouldn't have been alive had it not been for all the help from the old timers. And Kuldeep ji spoke about something which was about 10 to 11 years ago. I was just out of rehab, and my counselor had told me, don't go to slippery places. For me, Goa was a slippery place. And what was happening was that I was feeling very constrained in myself that I cannot go to a beautiful place like Goa. I love Goa. And she said, for 5 years, you should not go to Goa. I said, okay. And I come out of rehab. And the first thing I know is that the AA convention is going to be in Goa. And everybody was going to be there. And I called my counselor and I said, there's an AA convention and I want to go to Goa. My wife will come with me. Everybody will come to take care. She said, look, if there are 2,000 recovered alcoholics who are coming with you, what are you afraid of? Just go. And I remember that. And that time I started calling folks to say, Bhai, mera kuch ठिकाना nahi hai, thoda help karo. So again, of myself, I'm nothing. My sobriety date is 7th July 2010. I was fallen on the expressway, Bombay-Pune expressway, completely drunk, being picked up by my 75-year-old father, my mother, and some AA members from the road. I have a sponsor. My sponsor's name is Raj Bharat from Mumbai. He has a sponsor. I've done steps 1 to 9 to the best of my ability with my sponsor. And today I stay in the maintenance and growth steps, which is 10 and 11. And I worked step 12 with my sponsees over the weekend. And I'm available for sponsorship and for AA service. I've taken a home group. My home group in Mumbai is Holy Family Group. I recently moved to Singapore, and my home group in Singapore is YPG Group, although currently I'm in Mumbai. Before I start, Sarvapratham, I'd like to thank each and every member of the Serenity Group Delhi for giving me this opportunity. And I want to salute you and commend your enthusiasm and service in carrying this message to the still suffering alcoholic, even during the pandemic. You guys are just awesome. It's very inspiring to me. And I want to let you know that I love you all very deeply. The topic is regarding a spiritual malady and the remedy. Friends, every time I start, I say that whenever there is a problem, you need to know three things. What is the problem? What is the solution? And how to work the solution. So if my problem is, let's say, I have shivering and fever, my problem could be malaria. What is the solution? The solution is take quinine or take some medication. And how to work the solution is take a decision, go to the doctor, surrender to what the doctor is saying, and get it done. If my problem is thirst, my solution is water. How do I get water? Go to the kitchen, fill the cup, drink water. It's as simple as that. And if my problem is alcoholism, as a newcomer, I didn't know what the solution was. And I also didn't know how to work the solution.
Generally, I prepare for these topic sharings and take down some notes, etc. But today I just prayed and perhaps some new points, etc., may come up. And maybe what I'm saying, some newcomers may not understand. But if you've been in the A program or in the meetings for some time, you can reach out to any of us because our primary purpose is to help others achieve sobriety. Before starting, I want to say that if whatever I say you can find in the big book of Alcoholics Anonymous, then please pay attention to it, take it, read it, make it yours. If whatever I say cannot be reconciled in the big book of Alcoholics Anonymous, then you can throw it away and take it as Chandrashekhar's opinion. This program is not Chandrashekhar Anonymous. This program is Alcoholics Anonymous, which means that if you're an alcoholic, there is one solution and one path to the solution. So as a newcomer, if you just identify, you mean, even if you don't understand anything, if you just know towards the end, what are the 3-4 things to do, I want to assure you that if you do it, and I want to guarantee you that if you do it, you will recover and lead a very happy, joyous, and free life. This is not something that I am saying. The big book gives us a guarantee. Now, before diving into the problem, or they say spiritual malady, etc., let me understand first, what was it that alcohol gave me? So before diving into spiritual malady, आध्यात्मिक बीमार जो बोलते हैं, एक पता कर लेते कि अल्कोहल ने मेरे को क्या दिया. क्या था कि मेरा फर्स्ट ड्रिंक, मैं 18 साल का था और मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे सीनियर्स ने मेरे को एक बार में लेके गया. वो भी तू यार मस्त थोड़ा इंथुजियास्टिक टाइप का बंदा है, चल अपन के साथ चल, और दारू पीने के लिए गए. मेरे को कुछ हवा नहीं है, एक छोटे बार में बैठे थे, ओल्ड मॉन्क मंगाया, थम्स अप मंगाया, तो मैं गट करके पिया. अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा लगा. वो टाइम पे थोड़ा वियर्ड था, ओल्ड मॉन्क और थम्स अप में अच्छा लगता था. एक ग्लास पिया, सब लोग ऐसा गाने लगे, शर्ट का बटन खोल के आराम से बैठने लगे, कुछ तो पॉलिटिक्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में बात करने. मैं देख रहा हूँ सबको क्या हो रहा है, एक्टिंग कर रहे हैं. तो फिर दूसरा पैग आया, दूसरा पैग भी पिया मैं. पैग यानी क्या, वो क्वार्टर में 3 करते थे अपन, तो एक और क्वार्टर, एक और क्वार्टर, ये सब सीख रहा था मैं, क्वार्टर, ओल्ड मॉन्क, थम्स अप. तो वैसे 2 पैग, 2.5 पैग पिया था, तब मेरे को थोड़ा पेशाब करने का, आई वांटेड टू टेक अ लीक. तो टॉयलेट की तरफ गया, उठा मैं, पूरा ऐसा दुनिया हिल गई. ऐसा लगा कि मानो एकदम मैं चंद्रशेखर नहीं पर अमिताभ बच्चन. और ऐसा खुशी का जो वार्मथ और फीलिंग मेरे में आ गया, मेरे को लगा यार ये अमिताभ बच्चन, अमर अकबर एंथनी में दारू पीता है तो उसको ऐसा लगता रहेगा. ट्रांसफॉर्म हो गया था एकदम. और वही दिन मैं दारू पीने बैठा तो लोग देख रहा था कि एक आदमी इतना खाना खा रहा था, अरे यार भूख लगी है करके खाना खा रहा था. दूसरा आदमी बाहर जाके उल्टी कर रहा था. तीसरा आदमी सिगरेट फका फका फूक रहा था. एक दो लोग थे वो जो आराम से बात कर रहे थे, बैठ रहे थे. मैं उनके साथ गया और बोला हाँ चल और पीते हैं. मैं दोस्तों वो टाइम पे मेरा फर्स्ट 1.5 क्वार्टर के करीबन पिया रहेगा. और मेरे को लगा कि बॉस, ये मैं सीनियर के आंखों में आंखें डाल के देख रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था. एवरीथिंग सीम्ड टू बी वेरी गुड. आई वॉज हैप्पी, आई वॉज जॉयस, एंड आई वॉज फ्री.
अभी अल्कोहल ने मेरे को क्या दिया, वो मेरा कोटा के आधा कोटा पीने के पहले, बिफोर आई हैड हाफ माय कोटा ऑफ अल्कोहल ऑन द फर्स्ट ड्रिंक, आई वाज अमेज्ड. Before I was halfway through, I was amazed. I suddenly got to know a new freedom and new happiness. ये नहीं था कि ज्यादा फ्रीडम मिला या ज्यादा हैप्पीनेस मिला, ये नया फ्रीडम था, ये नया हैप्पीनेस था मेरे लिए. कभी महसूस ही नहीं किया था मैंने. मेरे मन में बहुत चिक चिक था, एग्जाम है, वो गर्लफ्रेंड ऐसे नहीं बोल रही है, वो प्रोफेसर मेरे को ये कर रहा था, वो सब मन में से निकल गया, सब टेंशन. एक प्रकार का सेरेनिटी आ गया था मेरे को, एक प्रकार का पीस आ गया था मैं जब दारू पिया. और मेरे को कितना कॉलेज लेवल में फुटबॉल खेला है, कॉलेज लेवल में वॉलीबॉल खेला है, मैं कमेंट मारता था और मेरे पर डिस्कशन होता था कि डिएगो मैराडोना फुटबॉल कैसे खेलेगा, सचिन तेंदुलकर बैटिंग कैसे करना होता है, क्रॉस स्क्वायर कट गावस्कर का अच्छा है, सचिन तेंदुलकर का. नो मैटर हाउ फार माई एक्सपीरियंस वॉज, I could still see how my experience can help others. वो जो यूजलेसनेस और सेल्फ पिटी शाइनेस मेरा जो था ना, मैं एक्चुअली आप मेरे को देखेंगे तो छोटा हूँ, नाटा हूँ, थोड़ा मोटा हूँ, थोड़ा आई एम अ डार्क इंडिविजुअल एक्सेट्रा, काफी शाइनेस था, एक सेल्फ पिटी था कि मैं यू नो अमिताभ बच्चन नहीं दिखता हूँ, ये सब. बट वो दो पैक पीने के बाद दैट फीलिंग वेंट अवे, एकदम एक प्रकार का एक सेरेनिटी आ गया. सडनली मेरा सेल्फिशनेस भी निकलने के लगा, पहला ड्रिंक में. मैं बोलता, अरे ठीक है यार, तेरे पास पैसे नहीं है ना आज, डैड ने पैसे दिए है थोड़ा, तो मैं स्पेंड करता हूँ, डोंट वरी. I lost interest in selfishness and gained interest in what I could give the fellows then. मेरा मानो whole attitude and outlook to life had changed. पहले सीनियर से मेरे को थोड़ा डर लगता था, पहले प्रोफेसर से थोड़ा डर लगता था. एक मजाक की चीज है कि एक प्रोफेसर भी हमको ज्वाइन किया वो टाइम, कुछ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा कुछ सिखा रहा था, मैकेनिक्स. वो आया और हमारे साथ एक पैक पिया वो बार में, और मैं उसके आंखों में आंखें डाल के पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया के साथ बात कर रहा हूँ. मेरे को पता नहीं, फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एकदम निकल गया. और अचानक इंट्यूटिवली आई न्यू हाउ टू हैंडल सिचुएशंस व्हिच आई वाज नेवर एबल टू डू बिफोर. बहुत टाइम के बाद मेरे को रियलाइज हुआ, बहुत टाइम के बाद, रिकवरी में 20-25 साल बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं दारू क्यों पीता था. बिकॉज अल्कोहल was doing for me what I could not do for myself. Alcohol मेरे को थोड़े promises देता था. Alcohol made me happy, joyous and free. Without alcohol, this Chandrasekhar, who was a little shy, थोड़ा नाटा, थोड़ा डरा हुआ सा, थोड़ा you know अच्छी तरह से बात नहीं कर सकता था. Without it, I could not have these promises. Suddenly दो पैक बॉडी में डाल गए. Chandrasekhar is Amitabh Bachchan. He is serene, he is calm, he is polite. अभी दारू जब चालू हुई तो मैं दारू पीने लगा. फ्री लेक्चर हो गया, दारू पिया, ये लेक्चर हो गया, दारू पिया. तब ड्रंकन ड्राइविंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ये नहीं था बॉम्बे में, एकदम अय्याशी. पिताजी के पैसे थे, आ रहे थे तब, जब मैं पढ़ रहा था, तो जितना सेविंग करके अल्कोहल में.
अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये चंद्रशेखर जो था उसके लिए सॉल्यूशन अल्कोहल था, प्रॉब्लम नहीं था. It used to make Chandrasekhar a more interesting, more calm, more serene, more fun-loving, more happy, more joyous, and more free man. तो अल्कोहल मेरे लिए कंप्लीशन था, संपूर्ण तरफ की तरफ लेके जाने वाला. थोड़े टाइम के बाद वो बोलते हैं ना, बढ़ते जाने वाली बीमारी, सॉल्यूशन ही बैकफायर हो गया. मैं जाता था 2-3 पैग एक क्वार्टर मारने के लिए, होता क्या था, बॉडी सडनली बोलता है यार दांत गीले नहीं हो गया, और आने दो और आने दो और आने दो और आने दो. तो ये जो मैं चंद्रशेखर हैप्पी जॉयस एंड फ्री के लिए अल्कोहल पीने के लिए जाता था, आउट होने लगा, ड्रंकन ड्राइविंग अरेस्ट होने लगा, झगड़ा होने लगा, फाइनेंशियल लॉस होने लगा. ये मेरे को 18 साल लगा दोस्तों. थोड़ों का जल्दी होता है, थोड़ों का नहीं होता है, और 18 साल लगा. That solution had backfired. That solution was not working for me anymore to make me happy, joyous, and free. Now, our book says that we are mentally ill and also physically ill. इसका मतलब क्या है कि मेरे को जब बोला था, बुक दिया था हाथ में, वो बोलता है यार, वो विलियम डी सिल्कवर्थ बोला है, 3 वस्तु स्थिति से भागते रहते हैं अल्कोहलिक्स. वो आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव रहते हैं या फिर उनको जीवन का सुर मिला नहीं. वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ बोल रहा है. ये लोग क्यों है अल्कोहलिक, कैसे लोग हैं कि यू आर एन आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव, यू आर इन फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी में रहते ही नहीं, और आपको जीवन का सुर मिला नहीं है, यू आर मैल एडजस्टेड टू लाइफ. और इसका बाह्य प्रदर्शन कैसा था, मैं बार बार वही चीज करता था और सोचता था नतीजा अलग रहेगा. 2 पैक पियेंगे, चिकन खाएंगे, सो जाएंगे. होता क्या था, ड्रंकन ड्राइविंग अरेस्ट. अगले दिन कोर्ट में जाके बेल आउट करके सब कुछ किया. दोपहर को ख्याल आता था आज ना कल के जैसा नहीं पीएंगे, 2 पैक पियेंगे, चिकन खाएंगे, सो जाते. होता क्या था, थाने टोल नाका पे उठ गया, किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, बटुआ गया, मारामारी चल रहा है. कल के दिन पूरा सूजा मुंह, सब कुछ करते हैं. बॉस को फोन करके, बॉस आई एम अनवेल, आई कैन नॉट कम टू ऑफिस. शाम को एक ख्याल आता था, आज ना कल के जैसा नहीं पीने का, 2 पैक पियेंगे, चिकन खाएंगे, सो जाए. क्या होता था, घर पे झगड़ा, बीवी के साथ, बीवी छोड़ के चली गई, मैं पागल जैसा टीवी पे बैठा हूं, टीवी टूट गया, पता नहीं क्या होता था मेरी लाइफ में. बार बार वही चीज करना और सोचता है नतीजा अलग रहेगा, उसका उसको पागलपन कहते हैं दोस्तों. पागलपन यानी इट इज अ मेंटल इलनेस. उसका मतलब क्या है, हमको 12 क्वेश्चंस दिया गया था जब मैं ए में आया मीटिंग रूम में. वो 12 क्वेश्चन का एक पैम्पलेट आता है. क्या ड्रिंकिंग आपको पर्सनल रिलेशनशिप में हानि पहुंचाती है, क्या ड्रिंकिंग आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचाती है, डू यू ड्रिंक बिफोर यू ड्रिंक, ये सब. इज ड्रिंकिंग कॉजिंग issue with personal relation, drinking causing issue with financial, drinking causing you, do you drink before you drink, is drinking causing you embarrassment, ऐसा क्वेश्चन था. उसको आप थिंकिंग से रिप्लेस करेंगे, so it is the same thing. Is your thinking causing you harm in personal relationship, is your thinking causing you financial losses, do you think before you think, does your thinking cause you embarrassment? You see, ड्रिंकिंग खाली एक बाह्य प्रदर्शन था. The core of the illness was also in the mind, was with the thinking. क्योंकि मेरा ही मन मेरे को ही परमिशन देता है कि आज ना कल के जैसा नहीं पिएगा. 18 साल दारू ने जलाया,
सब कुछ गया, बीवी गई, नौकरी गई, सब गया, बैठा हूँ घर पे, पर आज ना कल के जैसा नहीं होएगा, आज 2 पैक पियेंगे, चिकन खाएंगे, सो जाएंगे, ये मेरा मन कहता था। एंड बुक सेज वी आर फिजिकली इल ऑल्सो। फिजिकली इल यानी एक तरफ से दारू पिएगा तो लिवर फैटी होता है, सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, शोल्डर टूटता है, एक्सीडेंट होता है। बट एक और चीज है कि एबनॉर्मल रिएक्शन होता है। नॉर्मल लोग 1 पैक पियेंगे, खुश हो जाते हैं, उसको और आधा पैक चढ़ाएगा, उसको स्लीपी लगता है, वो लोग, नींद आती है वो लोग को, और आधा पैक पिलाएगा तो थोड़ा गाना गाएंगे, ये करेंगे, बवाल करेंगे, पर खाना खाने का मन करता है उनको। और 2-3 पैक देंगे उनको तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, पिलाया तो उल्टी करेंगे। मेरा पहला पैक गया, अमिताभ बच्चन जाग गया, वो बोलता है दूसरा आने दो। दूसरा आया, बोलता है दांत भी गीले नहीं आएंगे, और एक क्वार्टर आने दो। You see, the third peg demands the fourth peg. The fourth peg absolutely screams for the fifth peg. That is called an abnormal reaction to alcohol. और आने दो। ये मेरे को थम्स अप के साथ नहीं होता है, नींबू पानी के साथ नहीं होता है। देखो जब मैं पीता था, करीबन 3 क्वार्टर पीता था, लास्ट लास्ट में 3-4 पता नहीं कितना, और उसके साथ थोड़ा पानी पीता था और सोडा पीता था, शायद आधा लीटर पानी, 1 लीटर सोडा, तो करीबन 2.5-2 लीटर, 3 लीटर का फ्लूइड में डालता था बॉडी में। 2.5-2 लीटर फ्लूइड नींबू पानी पी सकते हैं क्या? माजा पी सकते हैं क्या? मैंगोला पी सकते हैं? नहीं, इट इज एन एबनॉर्मल रिएक्शन। सो वी वर फिजिकली इल ऑल्सो, सो वी वर मेंटली इल एंड फिजिकली इल। तो हमारा बुक बोलता है कि इफ यू आर मेंटली एंड फिजिकली इल, यू आर ऑल्सो स्पिरिचुअली इल। यानी आध्यात्मिक बीमारी भी है आपको, मेंटल बीमारी है, फिजिकल बीमारी है, और आध्यात्मिक बीमारी भी है। गॉड वांट्स अस टू बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। ये सब लोग बोल रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैं मिस्टर कृष्णा, मिस्टर क्राइस्ट, इनको नहीं मिला है। मैं खाली दारू पीता हूं। बट श्लोक बोलता है गॉड वांट्स अस टू बी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। और दारू नहीं पीता था तो मेरा पंगा चालू होता था। तो ये स्पिरिचुअल मैलेडी क्या है, ये स्पिरिचुअल इलनेस क्या है, आध्यात्मिक बीमारी क्या है? मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता था कि अल्कोहलिक को कैसे आइडेंटिफाई करने का। उसको दारू पीते वक्त हेवी ड्रिंकर अल्कोहलिक का जनरली डिफरेंस पता नहीं चलता है। वो बोलता है जब दारू नहीं है तो अल्कोहलिक को आइडेंटिफाई करो, वो रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंटेड रहेगा। तो मेरा क्या था, स्पिरिचुअल मैलेडी मेरा क्या था, द कोर ऑफ माई इलनेस क्या था, कि दारू नहीं पिया ना तो मेरे को पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता था। ऐसा नहीं है कि अभी आज दारू नहीं पिया तो आज ही पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था। मेरा थिंकिंग ऐसा था कि वो अल्टीमेटली मैं जो भी करूं, आई वुड हैव ट्रबल विद पर्सनल रिलेशनशिप्स। ऑफिस में, घर पे, बेटी के साथ, माँ बाप के साथ, फ्रेंड्स के साथ। दारू नहीं करूं तो आई कुडंट कंट्रोल माई इमोशनल नेचर। एकदम फाट करके गुस्सा आ जाता था, कभी एकदम खुशी आ जाता था, कभी एकदम इमोशनल ऐसा हो जाता था। सो आई कुडंट कंट्रोल माई इमोशनल नेचर। दारू नहीं पीऊं तो आई वॉज प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन। तो निराशा और वैफल्य कभी भी आते थे मेरे को। मानो कि अभी 5 दिन दारू नहीं पी रहा है तो कभी भी निराशा, कभी भी डिप्रेशन। दारू नहीं पीऊं तो मेरे को एक नौकरी मिल जाती थी दोस्तों, पर नौकरी निभानी नहीं आती थी मेरे को।
वो जो बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी, वो जो बोलते हैं ना कांस्टेंट, वो जमता ही नहीं था मेरे को। दारू नहीं पीऊं तो मैं भीतिग्रस्त हो चुका था, फुल ऑफ फियर। ये कैसा होगा, क्या होगा, बॉस क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। दारू नहीं पीऊं तो मैं नाखुश था दोस्तों। ये मीटिंग्स में भी आता था, पर हे सबको देख के मेरे को पता नहीं था कि ये लोग क्यों हंस रहे इतना, क्या क्या हो रहा है इनको। दारू नहीं पीऊं तो मैं दूसरों के लिए कुछ करूं, ऐसे क्षमता ही नहीं थी। मन में बहुत था कि आज ना बीवी को पिक्चर लेके जाए, या आज ना बीवी बच्चों को पार्क में लेके जाए, घूमने जाएंगे, या फिर कुछ मॉल में लेके जाएंगे, थोड़ा मजा करेंगे। पर दूसरों को हेल्प करने की क्षमता ही नहीं थी मेरे में, बिना दारू के। हाँ, क्योंकि मेरा मन डामाडोल था, आज नहीं। ये जो मैंने बोला दोस्तों, ट्रबल विद पर्सनल रिलेशनशिप, कैन नॉट कंट्रोल इमोशनल नेचर, निराशा, वैफल्य, नौकरी निभानी नहीं आती है, फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, फुल ऑफ फियर, अनहैप्पीनेस, कैनॉट हेल्प अदर पीपल, दिस इज द अनमैनेजेबिलिटी। ये स्पिरिचुअल मैलडी के सिम्टम्स है। If God wants us to be happy, joyous, and free, the spiritual malady is unhappiness. The spiritual malady is misery, depression, fear. The spiritual malady is addiction. तो मैं रिहैब से बाहर आया। ये चंद्रशेखर खाली दारू से लंबा है, पर डिजीज अल्कोहल में नहीं है। डिजीज इज इन चंद्रशेखर। हम बोलते कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल। व्हाट इज कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल? इट इज नॉट अल्कोहल, इट इज माई माइंड। क्योंकि मेरे मन पे मेरे को नियंत्रण नहीं है। हम बोलते हैं फेटल, प्रोग्रेसिव, इनक्योरेबल डिजीज, बढ़ते जाने वाली, कभी न ठीक होने वाली इनक्योरेबल डिजीज, जो बोलते हैं मौत की तरफ लेके जाने वाली। व्हाट इज द फेटल प्रोग्रेसिव डिजीज? इट इज नॉट दैट आई एम ड्रिंकिंग। द फेटल प्रोग्रेसिव डिजीज इज द स्पिरिचुअल इलनेस, बढ़ते जाने वाली। You will have more and more trouble with personal relationship. You will have more and more lack of control on emotional nature. You will have more and more misery and depression. You will have more and more problems with job. You will have more and more feeling of uselessness. You will have more and more and more and more and more fear, and you'll have more and more unhappiness, and you'll have more and more feeling that you want to help other people but you cannot. ये बढ़ते जाने वाली बीमारी है दोस्तों, और ये मौत की तरफ लेके जाने वाली है बीमारी। मैंने सुना है दोस्तों, 7वें साल में अगर वो सॉल्यूशन नहीं मिला तो हाथ में दारू नहीं आएगी, क्योंकि अभी ये मेंबर्स है, मीटिंग के लिए आ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। हाथ में पॉइजन आएगा। विदाउट दारू हम मार सकते हैं अपने आप को। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द फेटल, प्रोग्रेसिव, इनक्योरेबल डिजीज। तो मेरा प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के साथ बोलता हूँ। मैं मेरे बालकनी में बैठता था और दारू पीता था दोस्तों, सुबह सुबह उठ के। सुबह सुबह 9:30 बजे उठता था, बीवी ऑफिस गई तो मेरा विस्की निकाला, सोडा निकाला, थोड़ा एक दो कॉल किया। कॉल यानी क्या है, बॉस आई एम नॉट वेल, आई विल नॉट कम टुडे, आई विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम मंडे अगेन। थोड़ा वो ब्लड टेस्ट वट टेस्ट करना है। ठीक है, बॉस ने हाँ बोला। दारू पिया, बालकनी में बैठा है, सोडा डाल रहा हूँ, पी रहा हूँ, बैठा है, देख रहा हूँ कौवा घूम रहा है, कबूतर घूम रहा है। और मेरे बिल्डिंग के सामने एक साउथ इंडियन फैमिली रहते थे, बहुत ट्रेडिशनल थे। तो मैं देखता था ये बंदा ना
सुबह उठ के 6 बजे बालकनी में आके वो जो बोलते हैं ना, टम्बलर लेके पानी ऐसे ऊपर की तरफ सूरज को कुछ प्रार्थना करता था, ओम कुछ कुछ बोल के। मैं बोलता था ये येड़ा है। फिर 6:30 7 बजे उसका पूरा फैमिली उठता था, मैं अभी भी पी रहा हूँ सुबह में। फिर 6:30 7 बजे उनका पूरा फैमिली उठता था, वो भी अपने बेटी को लेके स्कूटर पे डाल के उसको स्कूल बस तक छोड़ के आता था। फिर वो स्कूटर में लेके बीवी को बस स्टॉप की तरफ लेके जाता था और उसको छोड़ के वापस आ जाता। फिर ये बंदा मैं देखता हूँ 1 घंटे बाद टाई सूट में बाहर निकला, अपने गाड़ी में बैठा और ऑफिस गया। तो बोलता था यार क्या बेकार जिंदगी है इसकी। और फिर मेरा, ये लोग गए, मेरा घर पे अकेला, थोड़ा खाना किया, थोड़ा सोया, थोड़ा उठा, वापस थोड़ा दारू पिया, थोड़ा ये किया, अपना बेवड़े का मालूम है कैसा चलता है। और मेरा ऑलवेज लंच के बाद मैं सोता था दोस्तों, ऐसा शेर की तरह सोता था। तो सोया, उठा, करीबन 5:30 बजे उठा। बीवी 6 बजे वापस आएगी या 6:30 बजे वापस आएंगी, आने से पहले दारू चालू करो। तो फिर वो कुछ नहीं बोली, तो विस्की डाला, ये वो बैठा, दारू पी रहा है। वही चल रहा है मेरा, कभी उतरी ही नहीं है, वही चल रहा है, हाय हाय पे हाय। तो मैं देखता था ये 6:30 बजे बंदा वापस आता था गाड़ी लेके, पूरा सूट वूट पहन के, और वो बच्ची को आप गार्डन से वापस लेके आता था। फिर तीनों, बीवी भी आ गई ऑफिस से, उसकी बीवी, तीनों फैमिली गाड़ी में बैठ के मॉल में जाते थे या फिर पिक्चर जाते थे। और मैं बोलता था ये साला मद्रासी एडा है, मॉल में किसको लेके जाने का। मैं 5 साल पहले बीवी को ऑस्ट्रेलिया लेके गया था। मैं 2 साल पहले बीवी को वो इवेंट में लेके गया था, मॉल क्या लेके जाने का। और इसे, ये मेरी सोच थी दोस्तों। मैं पी रहे, अभी भी पी रहे। पर क्या होता था कि लगातार 4 5 6 10 12 दिन पीने के बाद बॉस का फोन आता था, बीवी के साथ झगड़ा होता था, और जेन्युइनली मेरे को लगता था अभी बहुत हो गया यार, दारू क्या कर रहा है यार तू। ऐसा उठा नहीं, आंख सूजे हुए, किधर किसी के साथ झगड़ा, किधर पड़ा हुआ, पुलिस का मार मिला। तो मैं आके बीवी के साथ बैठता था और बात करता था, सेइंग आई वांट टू लीव। तो बीवी बोलती थी यस यस यू शुड लीव, और बोलती थी यार वो देखना सामने वाला मद्रासी कितना अच्छा रहता है। और मेरे को अंदर से लगता था हाँ यार, मेरे को ये जिंदगी चाहिए, ये नॉर्मल जिंदगी चाहिए। आई वॉन्ट टू लीड अ हैप्पी लाइफ। तो मैं कोशिश करता था, और आज इज्जत से दारू नहीं पिएगा। बीवी मेरे को आइसक्रीम लाके देती थी, कुछ अच्छा पकाती थी, सब कुछ। आज एक दिन दारू नहीं पिया। मंडे, सैटरडे संडे, मंडे ऑफिस गया। मंडे ऑफिस गया, बॉस बोल रहा है यू आर लुकिंग फ्रेश। फ्रेश ही लगेगा, हैंगओवर नहीं है। टेल मी बॉस व्हाट कैन आई डू। सेल्स में लगा रहा, कॉल्स किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वापस आया। बेटी आई, पापा पापा चल गार्डन में चलते हैं, चलो गार्डन में। 6:30 बजे उसको गार्डन में लेके गया, वापस आया। बीवी बोलती है आज डिनर के लिए बाहर चले क्या, हाँ चलो। डिनर के लिए लेके गया, वेडनेसडे हो गया। वेडनेसडे बीवी बोलती है चल आज मॉल चले क्या। मैं बोला आज थका हुआ है पर चलते हैं, चल मॉल। मॉल में आके घूम के आए, बहुत अच्छा गया। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बहुत अच्छा गया। थर्सडे को बॉस ने कुछ बोला, ए यार टारगेट्स आर नॉट हैपनिंग, यू हैव टू वर्क बेटर। मैं घर पे आया, मैं बीवी को बोला आज कुछ मत बोलो, आज मैं काम कर रहा हूँ। ओके ओके डोंट वरी, आप काम करो। फ्राइडे आ गया, ऑफिस गया, आते वक्त घर पे वही चीज होता था, मन में घंटी लगी। आज ना पहले का जैसा दारू नहीं पीने का, आज 2 पैक पियेंगे, चिकन खाएंगे, इज्जत से सो जाएंगे। घर पे आया, बीवी साड़ी में रेडी है, सेइंग वो अभी कुछ वो दिवाली फंक्शन के लिए जाना है। मैं बोला पागल है क्या, मेरे को बोला नहीं, मेरे को बहुत काम है, तू जा। तो बीवी और बच्ची को भेजा, मैं बैठा, फोन किया, दारू आई, दारू चालू। What was my problem? My problem was the necessary power
to lead a good and happy and normal life was not with me. If my problem is powerlessness, my solution must lie in power. और ए हमको बोलता है that power, that one is God, and you will find him through this book. वी एग्नोस्टिक में के लिए लिखा है कि our problem was lack of power. अगर हतबलता मेरा प्रॉब्लम है, अगर पावरलेसनेस मेरा प्रॉब्लम है, तो मेरा सॉल्यूशन हैज टू बी पावर. और उसको कैसे और कहां ढूंढने का, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस बिग बुक इज अबाउट. ये मेरा शब्द नहीं है, बिग बुक में लिखा है. नॉर्मल पीपल को अगर पूछेगा ना दोस्तों, मानो मेरे पिताजी या मेरे पिताजी कभी 2 हाफ पैक के ऊपर गए नहीं लाइफ में. कभी कभी ऐसा बाहर गए तो ऐसा 3 हाफ पैक पिया, वो भी 3 घंटे में. जो बोलते हैं ना हम लोग बोरिंग ड्रिंकर्स. और फुल एंजॉय करके फैमिली को गोवा में गाड़ी में बैठ के लेके जाना, ये करने का वो करने का. या मेरी बीवी कभी दारू नहीं पिया है. नॉर्मल पीपल के साथ बात करेंगे ना, उनका लाइफ देखेगा तो इट इज कैरेक्टराइज बाय सर्विस. यानी वो मेरी बीवी का अगर लाइफ देखेंगे तो बेटी का होमवर्क, हस्बैंड मेरे क्लोथ्स, ऑफिस का प्रेपरेशन, ये वो उसका सर्विस ऑफिस में, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो एक बार मैं बीवी को पूछा, यार मैं एक्चुअली रिकवरी में आया था, तो आई वांटेड टू डू 4th स्टेप ऑन वाइफ. So I sat with her. Old timers will understand. I sat this with her and I said, make a list of people you are angry with. वो 2 दिन बैठी यार, एक नाम नहीं आया यार. मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, यू आर नॉट एंग्री विद एनीबॉडी. यू सेड नहीं यार, मेरे पास ऐसा रहता ही नहीं. आई सेड करती क्या है जब झगड़ा होता है, या ऑफिस में कुछ कलीग के साथ कुछ तू मैं हुआ, या फिर कुछ बहन के साथ कुछ ऐसा चिड़ हुआ, तो क्या करती क्या है. मैं बोलती यार, मैं हाँ कभी कभी ऐसा तू मैं होता है, तो मैं बैठती हूँ और मैं आई जस्ट ट्राई एंड सी वेयर आई एम रॉन्ग. मी कुठे चुकतोय. एंड आई सी अगर मेरे को गलती मिली तो मैं उसको फोन करती हूँ और बोलते हैं सॉरी यार, मेरे से ऐसा हुआ, मैं थोड़ा प्रेशर में थी डेडलाइन के लिए, या फिर थोड़ा टेंशन में थी, इसलिए ऐसा कुछ बोला, प्लीज. She will call up the other person and say, let's clear the air, let's meet for coffee, let's clear the air. These words like let's clear the air, etc. ये मेरे वोकेबुलरी में थे ही नहीं, ये मेरे डिक्शनरी में थे ही नहीं कि मिलके थोड़ा बातचीत करते हैं. तो ये क्या करती है, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, थोड़ा निरीक्षण करते हैं, थोड़ा प्रायश्चित करते हैं, थोड़ा क्वाइट होते हैं, थोड़ा प्रार्थना बोलते हैं, and then they go about their service, their work, selfless service. तेरा कपड़े का इस्त्री, तेरा बेटी का होमवर्क, मेरा जॉब, घर का सब्जी पकाई, सब ये वो. भाई आती है, उसको कुछ चाहिए तो उसको झाड़ू पोछा, सब घर को साफ रखना. इट्स कॉल्ड सेल्फलेस सर्विस. ये नॉर्मल लोग ऐसे रहते हैं. क्यों रहते हैं नॉर्मल लोग ऐसे? बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे आर सेम. उनका मन एबनॉर्मल नहीं है. उनका मन उसको बोलते नहीं है ना, आज ना प्लग पॉइंट में हाथ डालेंगे, शॉक लेंगे, आज ना गरम स्टोव पे हाथ डालेंगे. ऐसा नहीं है. उनका मन उनको बोलता नहीं है कि आज ना 2 पैक पियेंगे, चिकन खाएंगे, सो जाएंगे. बिकॉज दे आर सेम, दे आर संपूर्ण, दे आर कंप्लीट in most ways compared to alcoholics.
तो मेरा प्रॉब्लम क्या था? मेरा प्रॉब्लम था कि वो लेवल तक भी नहीं पहुंच सकता था, नॉर्मल सी सैनिटी के लेवल तक भी नहीं पहुंच सकता था। हमारा बिग बुक बोलता है, इन स्टेप 10 बोलता है कि सैनिटी विल नाउ रिटर्न। स्टेप 10 में बोलता है कि संपूर्णता वापस आएगी। स्टेप 2 में बोला ना, आई एम इनसेन, आई कैन नॉट, आई केम टू बिलीव, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। वो स्टेप 10 में आके बोलते हैं नाउ सैनिटी विल रिटर्न, अभी आप आपका ब्रेन यूज कर सकते हैं, वो परवानगी देते हैं। देखो आप, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेप 10 के पहले दिमाग लगाना मत करो, ऐसा बुक बोलता है, दिमाग मत लगाओ बोलते। तो दोस्तों मेरा प्रॉब्लम क्या था? मेरा प्रॉब्लम लास्ट लास्ट में ऐसा आया था कि मेरे को मालूम था मैं पिएगा तो मरेगा, मैं नहीं पिएगा तो भी मेरे को जीना आता नहीं है, तो भी मैं मरेगा। जो टू अपोजिंग फोर्सेस, इफ आई ड्रिंक आई विल डाई, इफ आई डोंट ड्रिंक आई कैन नॉट लिव। दोस्तों ये कहां कहां पड़ा है हमने? अभी मैं थोड़ा रिलीजन के ऊपर बात करता हूं दोस्तों, बट दिस इज नॉट अ रिलीजियस प्रोग्राम, मैं खाली एग्जांपल देने, उदाहरण देने के लिए बोलता हूं। चंद्रशेखर बोलता है इफ आई ड्रिंक आई विल डाई, इफ आई डोंट ड्रिंक आई कैन नॉट लिव। यानी ये रॉक बॉटम दोस्तों। आपने ये सुना होगा कि एक बहुत महान वॉरियर थे, वॉरियर, क्षत्रिय। वो he went to the middle of the battlefield and he said, if I fight, my life is not worth living if I kill my uncles, relatives, etc. But if I don't fight, they will kill me and I will die. Two opposing forces, rock bottom. और कहाँ सुना है? There was a very big prophet who had come on earth. And he says he was hanged on the cross. उसको सूली पे चढ़ाया था. And he says, God, you have sent me to this planet to do your work as your son. Next breath he says, why hast thou forsaken me? Rock bottom. एक महान जो संत हम बोलते हैं, गौतम बुद्धा. Before that he was a prince, a big prince. He said, I have everything. I have everything in this world, life's pleasures, everything. But I am going to get old, shriveled, withered, ऐसा पूरा wrinkled, and I'm going to die. Life is full of suffering. Rock bottom. जब two opposing forces push you down without any hope, that is called rock bottom, दोस्तों. हर एक रिलीजन, मनुष्य का इतिहास देखेंगे, हर एक जो भगवान का कार्यक्रम कोई भी ले लो, वो बोलता है मैन्स एडवर्सिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी. उसका मतलब है जहां जहां मनुष्य को तकलीफ है, वो भगवान का चांस है. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, तब तब मैं हूंगा. Thy kingdom come, thy will be done. और कोई इंग्लिश वाले म्यूजिक सुनते हो तो लेड जेपलिन में भी एक हंसते हंसते मैं बोलता हूँ, इट्स विस्पर्ड दैट सून इफ यू ऑल कॉल द ट्यून, द पाइपर विल लीड अस टू रीजन. इसका मतलब है पाइपर वाज नोन एज क्राइस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो ऑल द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड से मैन्स एडवर्सिटी इज गॉड्स अपॉर्चुनिटी. आप पूरा मोसेस से लेके, क्राइस्ट से लेके, कृष्णा से लेके, बुद्धा से लेके, कहां पे भी जाओ, ऑल द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड. गीता का फर्स्ट चैप्टर इज अर्जुना's despondency, Arjuna's powerlessness. हमारा फर्स्ट स्टेप इज alcoholics powerlessness, हतबलता.
पावरलेसनेस का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यदि पीऊंगा तो मरूंगा, इफ आई ड्रिंक आई विल डाई, ये मतलब नहीं। आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल का मतलब है, चंद्रशेखर, यू विल ड्रिंक एंड यू विल डाई। तेरे को चॉइस ही नहीं है। मैं अभी 18वें माले पे रहता हूँ मुंबई में। मैं अगर 18वें माले से जंप मारा बाहर, मुंबई में लंबे लंबे बिल्डिंग्स रहते हैं, तो मैं अगर 18वें माले से जंप मारा बालकनी से बाहर, तो मैं मरूंगा। बट एम आई पावरलेस ओवर जंपिंग आउट ऑफ द विंडो? द आंसर इज नो, आई एम नॉट पावरलेस। इफ आई जंप आई विल डाई, बट आई एम नॉट पावरलेस बिकॉज आई हैव अ चॉइस, मैं नहीं करूंगा। बट व्हेन इट केम टू अल्कोहल, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल मीन तू कितना भी विल पावर यूज कर, तू कितना भी ब्रेन पावर यूज कर, तू कितना भी क्या भी सोच के रख, तू दारू पिएगा और मरेगा। उसका बाह्य प्रदर्शन इज, तू दारू कंट्रोल में नहीं पी सकता है, तू दारू बंद नहीं कर सकता है। और उसका स्पिरिचुअल मैलेडी क्या है? You cannot make a living. You have problem with personal relationship. You are full of fear, nirasha, vaifalya. दूसरों के, you cannot be useful to others. That is the spiritual malady. वो बढ़ते जाने वाली। तो बिग बुक बोलती है कि उस पे वार कर, if the spiritual malady is cured, तुम मेंटली और फिजिकली स्ट्रेट हो जाएगा। ये प्रोग्राम का ट्विस्ट और ये प्रोग्राम का जादू है कि तू मेंटली छोड़, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाता था, मैं साइकेट्रिक के लिए जाता था, कुछ कुछ मिला नहीं दोस्तों। 2 साइकेट्रिस्ट देखा मैंने, बहुत देखे मैंने, अल्कोहल से बाहर नहीं गया। मेरी बीवी बोलती थी शायद तेरे को टाइम पास चाहिए, कुछ जिम ज्वाइन कर, कुछ स्पोर्ट्स ज्वाइन कर, साइकेट्रिस्ट को मिल। सब कुछ ट्राई किया। आई ट्राई टू अटैक मेंटल इलनेस, आई ट्राई टू अटैक द फिजिकल इलनेस, नथिंग वर्क। एए में आके बोला यू अटैक द स्पिरिचुअल इलनेस, तेरा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेट हो जाएगा। क्या जादू है दोस्त, क्या जादू है। सो व्हाट टू डू? ये बुक मेरे हाथ में आ गई। ये बुक क्या है? प्रॉब्लम है कि हम ज्यादा पढ़ते नहीं है इसको, और पढ़ के भी कुछ फायदा, यानी कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये स्पॉन्सर के साथ पढ़ने का बुक है। तो मैं अभी लास्ट में समरी बोलता हूँ कि करना क्या चाहिए। पहले बुक क्या है बोलता हूँ और करना क्या चाहिए। पेज 44 हमारे बुक में क्लियरली रहती है, यदि आपको अल्कोहलिज्म लगा है तो आप एक आधार के, आप एक आजार या बीमारी के अधीन हो चुके हैं, जिसका केवल आध्यात्मिक अनुभव आपको ठीक कर सकता है। If you're suffering from alcoholism, you're suffering from an illness which only a spiritual experience will conquer. यानी आपको आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा, जैसे कि बिल डब्ल्यू का आध्यात्मिक अनुभव, like Christ got on the third day, like Arjuna got, he saw Virat Swarup on the battlefield, like Buddha got enlightenment, वो ही experience। ये इस स्तर की किताब है दोस्तों। इट इज द सेकंड और थर्ड हाईएस्ट सेलिंग स्पिरिचुअल टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। वो ही एक्सपीरियंस आपको प्रॉमिस करती है। इफ यू आर एन अल्कोहलिक, दिस इज द बेसिक टेक्स्ट फॉर यू। आपको बिल डब्ल्यू की तरफ का एक्सपीरियंस मिल सकता है, कैसे? दैट इज योर जर्नी विद गॉड, पर वो गारंटीड है कि आपको आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा, तो फिर यू डोंट नीड टू ड्रिंक। तो क्या सीधा मंदिर में जब मारने का, टीका मार के नहीं। हमारे पहला फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन बिग बुक में लिखा है, वी आर 100 अल्कोहलिक्स हु हैव रिकवर्ड, यानी हमारा रिकवरी हो चुका है अल्कोहलिज्म से। अभी दोस्तों अगर मैं, मेरे को पूछेगा, मैं बोलता हूँ ए मीटिंग के आई एम एन अल्कोहलिक, बट आई एम जस्ट अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, आई एम अ रिकवर्ड अल्कोहलिक। दैट इज व्हाट द बुक इज टेलिंग। इसका मतलब क्या है कि आध्यात्मिक अनुभव आ चुका है, तो रिकवरी मिला, तो
वापस दारू नहीं पी सकता है क्या? ये बुक गारंटी देता है कि आप नहीं पिएगा, ये करेगा तो नहीं पिएगा. But if you have recovered from a bullet wound, does not make you bulletproof. तो रिकवरी का टेक्स्ट बुक किधर है? बिग बुक में. फर्स्ट सेंटेंस बोलता है, वी आर 100 people who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body. To show other alcoholics how precisely we have recovered, that is the main purpose of this book. मेन पर्पस ऑफ दिस बुक क्या है? एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है दूसरों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली हम रिकवरी कैसे होगा. तो इंस्ट्रक्शन सेट है, ये करो ये करो ये करो, फिर ये करो, फिर किताब ले लो, फिर पेंसिल ले लो, फिर ये करो ये करो. एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ये किताब. आपको अंत में क्या मिलेगा? As the result of these steps, I had a spiritual awakening. ये गारंटी है दोस्तों. I have never seen a person fail who has thoroughly followed our path. Problem is, हमको मालूम नहीं है पाथ क्या है. पाथ ऑफ ए, स्पॉन्सर को ले लो with honesty, with open mind and with willingness. ये 12 steps of Alcoholics Anonymous करो, आपको एक रिजल्ट आएगा, and that is a spiritual experience. Big book is nothing but an instruction set of recovery, of the steps to a spiritual experience. So if my problem is alcoholism, my solution is a spiritual experience. How to work the solution is pick up the big book and do the steps. पर ये मनोविरुद्ध कार्यक्रम है, क्योंकि अपने डिफेक्ट्स देखने के लिए और मन को ही आजार लगा है, तो सिक माइंड कैन नॉट क्योर इटसेल्फ, इसलिए स्पॉन्सर की जरूरत है. तो पहला चीज, आपको पता चलना पड़ेगा कि आप अल्कोहलिक है कि नहीं. कैन यू क्विट? नो. कैन यू कंट्रोल? नो. देन यू आर अल्कोहलिक, यानी आप पिएगा और मरेगा. इफ यू आर एन अल्कोहलिक, फर्स्ट थिंग, प्रार्थना चालू करो. नो ह्यूमन पावर कैन सेव यू. जब आपको लगे कि बस और नहीं हो सकता है, तो एक स्पॉन्सर ले लो दोस्तों. स्पॉन्सर ऐसा पकड़ो जिसका बिग बुक 12 स्टेप के साथ आध्यात्मिक अनुभव हो चुका है. स्पॉन्सर का जॉब आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, करियर एडवाइजर, मैरिज काउंसलर नहीं है, जिम एडवाइजर नहीं है. स्पॉन्सर जॉब इज टू कनेक्ट यू विथ योर गॉड थ्रू द 12 स्टेप्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस. स्पॉन्सर कैसे मिलेगा? स्टार्ट प्रेइंग. भगवान को पूछो, जो भी भगवान बोला मन में. साईं बाबा आया उनको पूछो, गणेश जी आया उनको पूछो, जो भी आया, क्राइस्ट आया उनको पूछो. गॉड प्लीज गिव मी अ स्पॉन्सर. 14 दिन प्रे करो, आपको मिलेगा स्पॉन्सर. ये मैजिक ट्राई करो. गेट दैट स्पॉन्सर, आस्क हिम विल यू बी माय स्पॉन्सर. और जो वो स्पॉन्सर बोलता है बिग बुक के माध्यम से, ही विल टेक यू थ्रू द बिग बुक, थ्रू द स्टेप्स. आपको एक रिजल्ट आएगा, आध्यात्मिक अनुभव. बुक इज गिविंग यू गारंटी यू विल नेवर ड्रिंक अगेन. और अगर आप 10, 11, 12 में रहोगे, स्टेप 10 के बाद क्या होता है? नॉर्मलसी विल रिटर्न, सैनिटी विल रिटर्न. आपको क्या करना है? निरीक्षण, प्रायश्चित, ध्यान, प्रार्थना और सेवा, सेल्फलेस सर्विस. आप उसमें रहोगे, यू विल ग्रो टुवर्ड्स प्रोग्रेस, टुवर्ड्स परफेक्शन. So I've spoken of the spiritual malady, which is our problem. I've spoken of the solution, which is a spiritual experience. And how to work the solution is in the big book. You have to take a sponsor and do the steps. If your problem is alcoholism,
Your solution is a spiritual experience. The way to work the spiritual experience is the 12 steps of Alcoholics Anonymous. And the byproduct of this process is God. हमको भगवान पे जंप नहीं करने का, हमको खाली स्टेप्स करने का. God will prove to you that there is a God. भगवान आपको prove करेगा कि there is a God. And suddenly you will realize that God is doing for you what you could not do for yourself. So I just want to earnestly beg of everybody, if you have not taken a sponsor and started the step work, I earnestly beg you to be fearless and thorough and give this program a chance and see where it takes you. ये जिंदगी में भगवान ने मेरे को चांस दिया है चंद्रशेखर को अय्याशी करने का कर, दारूबाजी करने का कर, ये करने का कर, वो करने का कर, फटी ना ए में आओ, 12 स्टेप प्रोग्राम करो और एकदम एक और बेहतर लाइफ जियो. Every day better Chandrasekhar, every day better Chandrasekhar. Chandrasekhar today is better than that of yesterday. Chandrasekhar tomorrow is better than that of Chandrasekhar. और इतना खुशी आज मेरे को पता चलता है कि what it means when you say God wants us to be happy, joyous and free. दोस्तों टाइम हो चुका है. थैंक यू, आपने मेरे को पेशेंटली सुना. थोड़ा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश, whatever came out, मेरे को याद नहीं है मैं क्या बात किया. अगर किसी को कुछ मैं दुखाया है प्लीज मेरे को माफ करना, वो इंटेंट नहीं था. Yeah, thank you very much. Thank you for the patient listening.